Assalamu alaikum viewers, Muhammad Nazim with the 18th lecture. Today I am continuing on with the same subject on which I have already covered a couple of lectures. In fact, I started with the diagnosis process and then after 2 lectures dealt in detail how to do the diagnosis, and then we finally came down to really taking up organizations and look into the various levels how to do the diagnosis. In my last lecture, I talked to you about diagnosing the organization at the highest level. Today, I'll be talking to you and I'll be discussing in detail how to diagnose the groups, because I told you that there are 3 levels in an organization. The higher level, where you'll have to organize the setup, the whole essence of what is the model of the organization you are looking forward to, and keeping in mind the various things which I'll be talking just now in a few minutes. At that level, you have to see what is going to be the overall structure. Then, second level, it is the groups which have to be aligned with the overall organization structure, and finally at the lowest level, the individuals, the jobs of the individuals that need to be structured as well. Talking about the middle level, where you really need to work out the details, how to organize groups. Let me take you back to my last lecture and refer to you about the example which I gave to you. I hope that you remember that. In fact, that was N brand organization producing shoes, joggers. Of course, they were marketing other products too, but they specialized in N branded shoes. Now, to remind you that the chief executive officer or the founder had a dream. He wanted to set up a special, separate type of organization for which he had a mission. उसका एक विजन था और वो उसी मिशन और उसी विजन को लेकर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया. और if you remember each and every part of my last lecture, मैंने कहा था आपको कि जो चीज बहुत important है at the highest level is the strategy. I'm forgetting about the input to the organization, which was the external environment and the industrial structure, क्योंकि वो यहाँ अभी मैं मौजू नहीं समझता उसको डिटेल में, क्योंकि surely I dealt in detail and I spent sufficient time. Please go through those things. लेकिन जो चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो है strategy of the organization, क्योंकि throughout the organization, at every level, group level, individual level, people have to be told what is the strategy of the organization. हमारा पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो स्ट्रेटजी के लिए मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई टोल्ड यू वाज द मिशन स्टेटमेंट. ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्या करती है? सोशल नीड सर्व करती है, लोगों को सर्व करती है, प्लेजर देती है. बिकॉज द मिशन स्टेटमेंट कुड बी वी वांट टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 years with this much revenue. That could be another approach. But if it is focused on giving pleasure or giving equal opportunity people to from every level to buy everything in a store, ये एक अलग मिशन है. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस मिशन पे चलती हैं और वो मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन की जाती हैं. जब आपको टॉक्ड अबाउट दी components of the organization, I said to you that other than the strategy, there was the mission statement, there were the goals and objectives, there was the strategy intent, and finally I told you there was the functional policies. ये चारों चीजें along with the culture, मैं mention नहीं कर रहा, लेकिन I will tell you later on, culture emerges, which I said to you last time. ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन करती हैं नीचे ग्रुप लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, क्योंकि
अगर ये चीज इम्पार्ट न की जाए तो ग्रुप्स भी डायरेक्शनलेस होंगी और इंडिविजुअल्स को भी अपनी जॉब की अलाइनमेंट विद द ग्रुप एंड विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। लास्ट एग्जांपल को क्विकली थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़े से हिंट आपको देता जाऊं कि एन ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन में जो फाउंडर था उसके गोल्स इतने क्लियर नहीं थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से डिफ्यूज थे, मगर मिशन बहुत क्लियर था, क्योंकि वांटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन टू बी रन लाइक एथलीट्स इन द फील्ड। उनका कल्चर क्या था? एथलेटिक कल्चर था, कंपीटिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड देन विनिंग। ये तीन चीजें थी और तीनों चीजें ड्राइव कर रही थी ग्रुप्स को भी और इंडिविजुअल्स को। ये जहन में रखिएगा तीनों चीजें। कल्चर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि लोग निचले लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरह से जैसे एथलीट्स हैं, कंपीट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे वांट टू विन ईच वन। नेचुरली कल्चर जहां स्वीप डाउन करता है फ्रॉम द फाउंडर टू अ सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स गेट टुगेदर टू फॉर्म ग्रुप्स एंड दैट ग्रुप्स कैरी फॉरवर्ड द मिशन स्टेटमेंट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहां से मैं इसी चीज को लेकर चलूंगा। आज आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हाउ डू ग्रुप्स दे अलाइन देमसेल्व्स, और वो ग्रुप्स आपस में अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं। और चूंकि जैसे मैंने कहा था कि ये तीनों लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इनफैक्ट कुड बिहेव लाइक अ सिस्टम इन इटसेल्फ। ग्रुप्स नीचे एक अपने तौर के ऊपर एक सब सिस्टम, इफ द ग्रुप्स आर वेरी बिग देन ये इन इटसेल्फ एक सिस्टम की तरह ऑपरेट करेंगे, और इंडिविजुअल खुद मैंने कहा था कि वो भी एक सिस्टम है। मेरा अगर आप वो मॉडल ओपन सिस्टम्स मॉडल जहन में रखें तो हम आज ग्रुप्स को देखेंगे कि हम इनको कैसे डायग्नोज करेंगे। अगर ग्रुप्स बड़े हो तो वो इसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बिहेव करेंगे। लार्ज ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स दे ऑपरेट मच लाइक ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिर उनको हमने, जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, हमने लार्ज ग्रुप्स को इसी तरह से डील करना है। स्मॉल ग्रुप्स दे बिहेव डिफरेंटली और उनके लिए हमें एक डिफरेंट मॉडल देखना पड़ेगा। हाउ जॉब्स आर डिजाइन्ड कैन अफेक्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। निचले लेवल पे आपने लोगों को कैसे उनकी जॉब्स को डिफाइन किया है, उनकी जॉब्स को कैसे कलेक्ट किया है, वो लोग इंडिविजुअली अपनी जॉब्स को कैसे एक्नॉलेज करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने रोल्स को, एंड हाउ डू द ग्रुप टुगेदर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको फॉर योर रिमाइंडर अगेन वही फिगर दिखा रहा हूं जिसके अंदर आपको पहला लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल नजर आ रहा है, उसके बाद ग्रुप लेवल नजर आ रहा है। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज एन इनपुट टू द सेकंड लेवल। यहां ग्रुप लेवल का इनपुट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन। और फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो है, इट विल लीड टू, दैट विल बी एन इनपुट एंड दैट विल डिफाइन हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स दे ब्रेक डाउन देयर डिफरेंट रोल्स, और उनको डिफरेंट रोल्स को हम ग्रुप्स में कैसे अलाइन करेंगे टू गेट द आउटकम विच यू आर लुकिंग एट द फिगर। शुरू में मैंने कहा था कि चूंकि एवरी लेवल, वेदर इट्स द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल लेवल, तीनों लेवल्स के ऊपर इंडिविजुअली ये एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपको जब हम ग्रुप लेवल की डायग्नोसिस करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि ये भी एक अपना अलग सिस्टम है जो कि बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट। अब यहां ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो भी है, दैट विल लीड टू द वेरियस डिजाइन कंपोनेंट्स व्हिच यू आर सीइंग। सो द ग्रुप्स हैव 5 मेजर कंपोनेंट्स।
जो भी ग्रुप फॉर्म होगा जिसमें जितने इंडिविजुअल्स आपस में इकट्ठे होकर वो काम करेंगे, उनकी सबसे पहले गोल क्लैरिटी जरूरी है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि स्ट्रेटजी में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ग्रुप्स को भी पता होना चाहिए कि उनके गोल्स की क्लैरिटी क्या है। टास्क स्ट्रक्चर, जो उनके गोल्स हैं, जो उन्होंने टास्क परफॉर्म करने हैं, उन टास्क को परफॉर्म करने का स्ट्रक्चर क्या है। तीसरी चीज, ग्रुप कंपोजिशन क्या है। आपने जो ग्रुप फॉर्म किया है उस ग्रुप में कितने लोग हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे आर दे गोइंग टू वर्क टुगेदर। थोड़ी देर के बाद मैं डिटेल में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देन परफॉर्मेंस नॉर्म्स क्या हैं, ये लोग इकट्ठे तो हो गए हैं, ये किस तरह परफॉर्म करेंगे, कोई परफॉर्म करने के रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स, कोई बिहेवियर, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में कोई डिसीजन हुआ है कि नहीं, कि कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड दी लास्ट वन इज दी ग्रुप फंक्शनिंग, कि ग्रुप विद ऑल दीज 4 क्वालिटीज फंक्शन कैसे करेगा। अगर इन सारे कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट ठीक होगी, देन वी विल गेट व्हाट इज शोन इन द आउटपुट, एंड दैट इज द टीम इफेक्टिवनेस। और टीम इफेक्टिवनेस कैसे डिटरमिन करेंगे हम, उसके लिए हम क्या चीजें डायग्नोज करेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एंड दैट इज उनकी परफॉर्मेंस, वर्क लाइफ परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है। इन दोनों चीजों से हमें पता चलेगा कि क्या इस ग्रुप की अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं। आइए जल्दी से वन बाय वन मैं थोड़ा सा आपको इनपुट्स के बारे में बता दूं। अगरचे द इनपुट at the group level is the output of the organization level, but in order just to refreshen your mind so that you may have a fair idea कि किस तरीके से इनके inputs are going to affect all the components, the 5 components of the groups which I've just mentioned to you. Now, organization design is clearly the major input to group designs. It consists of the design components characterizing the large organization within which the group is embedded. ये group basically large group के अंदर embedded है, तो लिहाजा it obviously is expected to reflect or embrace all the characteristics of the organization structure, and that is technology, structure, measurement systems, and human systems, and also the organization culture. ये सारी चीजें उसके साथ enmeshed होनी चाहिए, aligned होनी चाहिए. Now, let me take a couple of things. Technology can determine the characteristics of the group's work. जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि टेक्नोलॉजी डिमांड करेगी कि लोग कैसे ऑपरेट करें, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, कलेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, क्या जॉब की इफेक्टिवनेस अकेले में है, क्या उन्होंने शेयर करनी है, इंटरडिपेंडेंट है, लोग क्या असेंबली लाइंस पे काम कर रहे हैं या कि जॉब असाइनमेंट दर्जी की तरह हर एक को कपड़ा दिया गया, शाम को उसने बताना कितनी कमीजें सी हैं. सो स्ट्रक्चरल सिस्टम्स कैन स्पेसिफाई द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड अमंग ग्रुप्स. जहां टेक्नोलॉजी डिटरमिन करेगी कि रिक्वायरमेंट क्या है इंडिविजुअल की, तो स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है. मतलब कि क्या वो स्ट्रक्चर बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर है या वो डिफरेंशिएटेड है, इंटरडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. मेरे सामने इस वक्त जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, जिस बंदे की जो असाइनमेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्टिल ही इज coordinating this task with somebody else in the control room. But to some extent, he is free to cover me the way he wants. On the other hand, a person working on an assembly line would be entirely dependent on the other person. जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करेगा, दूसरे का काम शुरू नहीं होगा. The human resources and measurement systems
such as performance appraisal and reward systems play an important role in determining the team function. अगर reward system ठीक नहीं है और अगर आपका performance appraisal ठीक नहीं, क्योंकि अगर कोई performance का किसी को पता ही नहीं चल रहा या गलत performance appraisal हो रही है और rewarding में कोई flaw है, तो यहां again any OD practitioner will have to see whether the things are being correctly appraised or not, or people are being rewarded in the right manner or not. For example, individually based performance appraisal and reward systems tend to interfere with team functioning. अगर एक काम collectively लोग कर रहे हैं और performance of the task is determined by their collective input, लेकिन अगर reward चंद एक लोगों को preferentially हो रहा है तो ग्रुप की फंक्शनिंग बहुत अफेक्ट करेगी, उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी. सो माइंड इट व्हेन यू आर एनालाइजिंग, डायग्नोजिंग अ ग्रुप, यू हैव टू कीप इन माइंड कि उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका क्या है और रिवॉर्ड सिस्टम क्या है. अब हम आते हैं डिजाइन कंपोनेंट के ऊपर कि ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है, जो कि मैंने आपको 5 उसके एलिमेंट्स बताए हैं, उनको हमने कैसे we have to look into it and let's see how are they designed for any system, for any organization. सबसे पहले मैंने कहा था goal clarity. जैसे going back to the same example, N-brand की, the goals were not clear, and so at the production level people exactly didn't know, and that's why they had a problem. So goal clarity involves how well the group understand its objectives. ग्रुप जो के नीचे काम कर रहा है उसको गोल्स कितने क्लियर है. और याद रहे मैंने उस एग्जांपल में बताया था कि चेयरमैन जब भी कोई मीटिंग होल्ड करता था तो वो उन लोगों को बुलाता था जिनके साथ उसका कंसर्न था, those who were aggressively pursuing the marketing of the product, and the rest were not included. So therefore that wise उसके गोल्स इतने ही क्लियर थे लेकिन बाकी जगह उसके वेग थे. So in general goals should be moderately challenging or challenging for everybody. There should be a method for measuring, monitoring and feeding back information about goal achievement, and the goals should be clearly understood by all members. और मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि वो एग्जाम्पल जो पिछली बार मैंने आपको दी थी, वहां वी डिटरमिन्ड व्हाट वर द फ्लॉज. वहां प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वहां यही थी कि गोल्स क्लियर नहीं थे एंड एवरी वन वर्किंग एट वेरियस लेवल्स, द ग्रुप लेवल and at the lower level, individual level, they did not know what were the goals. Second component of the group structure is that we have to know about the task structure, कि इस ग्रुप का टास्क क्या है. So task structure is concerned with how the group's work is designed. हमने इस जो ग्रुप है 5, 6, 10 जितने बंदे हैं, इनसे जो काम हमने लेना है उसको हमने स्ट्रक्चर कैसे किया है. टास्क स्ट्रक्चर्स कैन वेरी along 2 dimensions. One is the coordination of members, या उनकी coordination of members effort, and second is the regulation of their task behavior. Individually उनके टास्क बिहेवियर को हमने कैसे रेगुलेट करना या उसने खुद कैसे रेगुलेट करना है, दोनों एस्पेक्ट्स हैं. और पहला मैंने कहा था कि हमने उन लोगों को ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है. द कोऑर्डिनेशन डायमेंशन इन्वॉल्व्स द डिग्री टू विच ग्रुप टास्क्स आर स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट effective interaction among group members. And minded coordination is important in groups performing interdependent tasks. जब मैं कह रहा हूं कि interdependent tasks में coordination बहुत important है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी इजी दे सकता हूं. Let's say in an operation theater,
वहां नर्सेस भी हैं, वहां एक से ज्यादा डॉक्टर ऑपरेट कर रहा होता है वन सिंगल पेशेंट. बट इमेजिन कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कितनी है, उनका टास्क एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है. इट्स नॉट दैट द डॉक्टर हु इज द मेन वन हु इज ऑपरेटिंग अपॉन independently काम कर रहा. No, he cannot, he or she for that matter, cannot operate upon the patient. So such a team जहां individually भी वो काम कर रहे हैं लेकिन collectively they're dependent on each other. It is relatively unimportant, however, in groups composed of members who perform independent tasks such as telephone operator या salesperson. अब टेलीफोन ऑपरेटर टेलीफोन एक्सचेंज में बैठा है, वहां उसका ग्रुप टास्क नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है. उसके ऊपर गालिबन सुपरवाइजर भी नहीं खड़ा, चेक भी नहीं कर रहा है. लेकिन असेंबली लाइन के ऊपर आप देखेंगे कि जहां इंटरडिपेंडेंट टास्क है वहां अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड वॉचिंग कि क्वालिटी सही तरह मेंटेन की जा रही है कि नहीं. मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन डायमेंशन है. देन सेकेंड एस्पेक्ट मैंने कहा था रेगुलेशन डायमेंशन है. This involves the degree to which members can control their own task behavior and be relatively free from external controls such as supervision, plans and programs. जो बंदा अपने काम को खुद रेगुलेट कर रहा है, डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, वो अपने काम को खुद ही रेगुलेट कर रहा है. उसको पता है क्या कहां काटना है, कितनी डीपर जाना है, किस चीज को रिमूव करना है, ठीक है, और वो खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहा है. So self-regulation generally occurs when members can decide on such issues as task assignment, work methods, production goals and membership. हर बंदा अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता. आप प्रोडक्शन सिस्टम्स में देखेंगे कि you have got only a limited level of freedom. But in certain cases, in enriched jobs, you will see कि वहां वर्कर को, इंडिविजुअल को, मेंबर को ऑफ द ग्रुप को रेगुलेट करना पड़ता है अपने आप को. लेट मी लुक एट द थर्ड component, third element, and that is the group composition. Now, composition concerns the membership of groups. It is related to the group behavior, and group behavior is determined by demographic variables: age, education, experience, skills, abilities. These things, they affect how people behave and relate to each other in groups. Mind it, very important factor in groups. उनकी composition क्या है? So demographics के ऊपर diagnostic जो है, diagnoser जो है, वो demographics पे बहुत ध्यान देता है. And demographics can determine whether the group is composed of people having task relevant skills and knowledge, including interpersonal skills. क्योंकि लोगों की अपनी internal needs हैं, लोगों की social needs हैं, and that will determine वो ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं. Internal needs क्या है कि जॉब एनरिचमेंट है कि नहीं, रोज आ रहा है, वो हथौड़ा पकड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है, असेंबली लाइन पे बैठा हुआ है, साथ वाले से बात भी नहीं कर सकता. So very important. So individual differences in social needs can determine whether group membership is likely to be satisfying or stressful. ये ध्यान रखिएगा जब भी आप डायग्नोसिस करें, आप ये देखिए कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस बंदे की आपस में सोशल इंटरएक्शन कितनी है, सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं, उसकी अपनी पर्सनल नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं. और let me tell you, sometimes even rewards do not give that sort of a performance जितनी कि individual needs और social needs देती. चौथा component देख लेते हैं जल्दी से डिजाइनिंग component के अंदर, and that is the group functioning. Now, group functioning is the underlying basis of group life. How members relate to each other is important in group works because the quality of relationship can affect task performance. अगर ग्रुप के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट है और इंटरनल कंपटीशन है तो माइंड इट, ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, गौर कीजिएगा. लेकिन अगर ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा कोहेजन है,
हर वक्त बैठे हुए एक दूसरे के प्रॉब्लम्स ही हल करते रहें, तब भी इफेक्टिविटी नहीं. So there needs to be a balance. In OD, considerable effort has to be invested to help work group members develop healthy interpersonal relationships, including an ability and a willingness to share feelings and perceptions about members' behavior. So, ग्रुप फंक्शनिंग के ऊपर वहां हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ग्रुप कैसे फंक्शन करता है, ज्यादा कंफ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ज्यादा कोहेसिवनेस नहीं होना चाहिए कि हर वक्त बैठे गप्पे मार रहे हैं. एक तो ये, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप मेंटेनेंस फंक्शन बहुत जरूरी है. एक दफा ग्रुप को आपने फॉर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है. एंड दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड holding the group together as a cohesive team, and this includes encouraging, harmonizing, compromising, setting standards, and observing that thing. और हम ये चीज diagnosis में भी देखेंगे. Last component is the performance norms. लोग परफॉर्म कैसे करते हैं, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक ग्रुप में आपस में कैसे कलेक्टिवली कंफ्लिक्ट है कि नहीं, या कलेक्टिवली कैसे बिहेव कर रहे हैं. सो परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर मेंबर बिलीव्स अबाउट हाउ द ग्रुप शुड परफॉर्म इट्स टास्क एंड इंक्लूड एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. सो माइंड इट, ये जो नॉर्म्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरैक्शन अमंग मेंबर्स एंड सर्व एज गाइड्स टू ग्रुप बिहेवियर. जब भी लोग इकट्ठे कम्युनिटी में रहेंगे, वो कुछ सर्टेन नॉर्म्स अपने एस्टैब्लिश करेंगे. दे विल लर्न टू बिहेव, दे विल लर्न टू इंटरैक्ट इन अ सर्टेन फैशन. आई मे बी थिंकिंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम यू, लेकिन व्हेन वी गेट टुगेदर, मेरा बिहेवियर आपको ध्यान में रखते हुए होगा, नॉट दैट द वे आई वांट टू. सो वंस मेंबर्स एग्री ऑन परफॉर्मेंस नॉर्म्स, either implicitly or explicitly, then members routinely perform tasks according to these norms. Let us say कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप बैठा हुआ है. उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए भी उनके कुछ नॉर्म्स होने चाहिए. कि क्या हम अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं? क्या हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? क्या हम अपने डिफरेंसेस जो हैं कंसेंसस के साथ करते हैं कि ठीक है जी, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, लेट अस वर्क टुगेदर. फॉर द टाइम बिंग हम अपने पर्सनल डिफरेंसेस भूल जाएं. ये नॉर्म्स एक ग्रुप के, एक नेशन के दुनिया में रहने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं, परफॉर्मेंस नॉर्म्स. दैट इज वन हैज टू. एक्जेक्टली इन मीटिंग्स में भी आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जब मीटिंग्स होती हैं, वहां भी परफॉर्मेंस नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइए अब हम आउटपुट देखें. ग्रुप इफेक्टिवनेस हैज टू डायमेंशंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिविटी. परफॉर्मेंस और quality of work life. Now, performance is measured in terms of the group's ability to control or reduce costs, increase productivity or improve quality. Performance का कैसे पता चलेगा कि एक ग्रुप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? इस तरह से कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. Only then these are the measures. So लिहाजा डायग्नोसिस के लिए हम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इन चीजों के ऊपर नजर अपनी दौड़ाएंगे. इफेक्टिवनेस कैसे? दिस इज इंडिकेटेड बाय द ग्रुप मेंबर्स क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. उसकी क्वालिटी क्या है वर्क लाइफ की? इट कंसर्न्स वर्क सेटिस्फैक्शन, टीम कोहेजन एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट. सो दीज थिंग्स विल डिटरमिन. आइए जल्दी से हम देखें कि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे में फिट कैसे हो रहे हैं. Now, research suggests that the fits of the input and design components में पहली बात यह है कि group design should be congruent with the larger organization design. Of course, मैंने अभी इतना कुछ आपको बताया कि group design और organization design को fit in. When group designs are not compatible with organization designs, groups often conflict
with the organizations. They may develop norms that run counter to organizational effectiveness, such as occurs in groups supportive of horseplay, backbiting और दूसरी counterproductive measures. अगर ये दोनों merge नहीं कर रहे तो इसी तरह से हो गए उस organization में बहुत ज्यादा सियासत होगी. So organization structures with low differentiation and high integration should have work groups that are composed of highly skilled and experienced members performing highly interdependent jobs. लेकिन जिसके अंदर organization के अंदर with differentiated structures and formalized human resources and information systems होंगे, they should make groups that have clear quantitative goals and support standardized behavior. Second alignment के लिए जरूरी है, when the organization's technology results in interdependent tasks, coordination among members should be promoted by task structures, that is, composition, program, performance norms, and group functioning. Technology अगर interdependent है, तो we have to see कि हमारा group कैसे function करेगा. That is, has to be more performance, उसकी जो है norms और group functioning जो है, it should be more coordinated. On the other hand, when technology permits independent tasks, the design components should promote individual task performance. When coordination is needed, task structure might physically be located with the groups working together, or otherwise independently होगी तो हम उनको दूर दूर रख सकते हैं. तीसरी alignment का असूल ये है कि when the technology is relatively uncertain and requires high amounts of information processing and decision making, group task structure, composition, performance norms, and group functioning should perform self-regulation. Mind it, finished end of the product, assembly line के ऊपर जहां तक तो लोग बैठे हुए हैं, वो बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर उनके ऊपर जो है वो किसी हद तक इंडिपेंडेंट है. वो खुद डिसीजन मेकिंग करता है, वो खुद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. गाड़ियां असेंबली लाइन से बनकर आखिर में जा रही हैं, तो जब फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है तो somebody over there गाड़ी की ट्यूनिंग करता है, ओवरऑल चेकअप करता है, more or less independent. So when technology is relatively certain, group designs should promote the standardization of behavior, and groups should be extremely controlled by supervisors, schedules and plans. That is important. आइंदा आप जितनी भी एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर आप ये देखेंगे इस बात को कि टेक्नोलॉजी कितनी डिपेंडेंट है ग्रुप्स के ऊपर. अगर वो डिपेंडेंट होगी तो यू विल हैव टू फॉर्मलाइज द फंक्शन. आपने उनका टास्क के ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा. अदरवाइज सेल्फ रेगुलेटेड टास्क्स आपको अकॉर्डिंगली ग्रुप्स को करना पड़ेगा. I hope that with this, the whole composition of the groups and the input, you have now a fairly good idea कि आपने जब भी groups को form करना है, then you have to keep in mind the input factors and see to it that all those things which are determined by the technology and the structure, which is as well determined by the overall organization level, उसके लिए आपने accordingly अपने groups को डिजाइन करना है और उनके various tasks, जिसमें 5 elements मैंने आज आपको बताए हैं, उसके मुताबिक आपने अपने ग्रुप्स को स्ट्रक्चर करना है. आइए अब हम, having told you all about the diagnostic elements, कि आपने जब ग्रुप लेवल के ऊपर डायग्नोसिस करने हैं तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है. मैं आपसे एक एग्जाम्पल के साथ, एप्लीकेशन कह दीजिए, ये सारे हम चीजें अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि वो जो एप्लीकेशन, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग, और वो कैसे इन चीजों को इनकॉर्पोरेट
कर रहे हैं कि ग्रुप फॉर्मेशन टास्क स्ट्रक्चर को उन्होंने कितने हद तक इंप्लीमेंट किया और कैसे जो अलाइनमेंट और फिट्स हैं ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स आर डिटर्मिनिंग के इनपुट और ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस में हो रही है, आउटपुट वाकई परफॉर्मेंस और इफेक्टिविटी उतनी दे रही है कि नहीं, हम एक एप्लीकेशन से देखते हैं। आइए आपके साथ एक मैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग की या ग्रुप कह लीजिए कि ग्रुप एक्टिविटी की डायग्नोसिस करते हैं। दिस अ कॉर्पोरेशन, इट्स अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, और इस ओवरऑल जो कॉर्पोरेशन है वो नीचे छोटे छोटे डिविजन्स में इंडिपेंडेंट प्लांट्स ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के बनाती है। एक वन ऑफ द न्यूअर प्लांट्स पे कुछ प्रॉब्लम आई, वो इस तरह से कि उस प्लांट का जो मैनेजर, द टॉप मैन, he discovered that OD practices are not producing the results. Therefore, he wanted to find out, and that's why he convened the 5 managers of the divisions, the heads of the divisions, and along with himself, he convened a meeting. गोया उस मीटिंग के अंदर प्लांट मैनेजर himself और divisional managers maybe from production, engineering, marketing, and say administration, human resource वगैरह, they're all there. All people who are comparatively new, नया प्लांट है, नए लोग हैं, 5-6 महीने का उनका आपस में रिलेशनशिप है। उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस ये थी कि they would meet every week for 2 hours to share the information and to diagnose the problems जो कि उनके वेरियस डिपार्टमेंट्स में आ रही है। अगर मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो हेड ऑफिस है उन्होंने दिया था, was totally independent, promoting participative management and decision taking. Open culture है, encouraging healthy input from the people, and they were independent. उनको ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी cultural, so that they had to operate within certain norms. उनकी जो नॉर्मल मीटिंग्स एवरी वीक 2 घंटे हुआ करती थी, उसका तरीकाकार ये था कि पीपल वुड कम, कोई लेट आ रहा है, कोई आ रहा है जल्दी चला जा रहा है, सेलुलर फोन पड़ा हुआ है, बीच में कॉल्स भी आ रही हैं, बाहर अटेंड करने जा रहे हैं, गोया दैट सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप नॉर्म्स थे उनके। जो प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस वो करते थे, उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दूसरे की बात सुनते थे और जो चीज नहीं समझ में आ रही थी और जिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहते थे, पोस्टपोन कर दिया करते थे। Although all these people were very professional people, heads of the department, they were very professional, they were very experienced, yet in this group, the plant manager could not control it. And at times a plant manager, if he wanted to take some decisions and he found there was no consensus, उसमें से कुछ लोग खामोश रहते थे, and some would, if speak, they would carry the decision. उसमें और कोई decision taking का problem नहीं था. This was the norm. The plant manager found out कि ये तरीकाकार चलता आ रहा है इस तरीके से. आइए हम इसकी एनालिसिस करते हैं. Now the group is having a series of ineffective problem solving meetings. Yeah. क्या है? पहले कि चूंकि decisions नहीं हो रहे थे, so backlog of unresolved issues. Second, poor use of meeting time. Third, lack of follow-through and decision. Fourth, general dissatisfaction with the team meeting. Relationship बड़ी cordial थी, लेकिन somehow लोग tense होते जा रहे थे क्योंकि उनके problems resolve नहीं हो रहे थे. Now, examining group inputs and design components and how the two fit can help explain the causes of these. The key issue in diagnosing group inputs is the design of the larger organization within which this group is embedded. जैसे मैंने पहले कहा था. लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पोरेशन है is relatively differentiated. Each plant is allowed to set up its own organization design. Independence दी हुई थी. अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि इस ग्रुप में क्या प्रॉब्लम है और जो जी कॉर्पोरेशन है उन्होंने क्या उनको फ्रीडम दी हुई थी. Although no specific data are available, the company's technology, structure, measurement system, human resource systems, and culture appear to promote flexible and innovative behaviors
at the plant level. सारी thing alignment के हिसाब से बिल्कुल ठीक है. Of course, indeed, freedom to innovate in the manufacturing plants is an outgrowth of the firm's OT activities and participative culture. In this case, the decision-making group, such as this one, organization design also affects the nature of the issues that are worked on. क्या है? The team meeting appears to be devoted to problems affecting all the function departments. Team meeting के अंदर problems लोगों के पास हैं, that's why they are getting frustrated. This suggests that the problems entail high interdependence among the functions. Consequently, high coordination among members is needed to resolve them. सारे जो मैनेजर्स इकट्ठे हो रहे हैं, they are interdependent. मार्केटिंग का प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन रिसोर्स सब पर डिपेंडेंट है, लिहाजा इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे की है. The team meetings also seem to include many issues that are complex and not easily solved, so there's a problem of relatively high amount of uncertainty in the technology of work process. Technology is highly dependent on coordination. So the causes of the problems or acceptable solutions are not readily available. ये problem है इस group का. So members must process considerably information during problem solving, especially when there are different perceptions and opinions about the issues. Having seen this, let's diagnose the team's design components. पहला question जो मैं आपके सामने करूंगा कि how clear are the group's goals? कि इस ग्रुप के गोल्स कितने क्लियर हैं? Relatively very clear. They are there to solve the problems. But there appears to be no agreement. उनको पता है कि वो आते हैं, हर 2 घंटे मिलते हैं, गोल उनको क्लियर है. So what is the group's task structure? Group's task structure includes face-to-face interaction. It allows members from different functional teams to come together. It also gives freedom to all these members to share. As far as the structure is concerned, very good structure. Freedom भी है. Organization culture promote करता है. So what is the composition of the group? Task relevant skills and experiences in managers के पास हैं. So they also seem to be interested in solving problems collaboratively. So shared interest suggests that members have job-related social needs and should feel relatively comfortable in group problem-solving solutions. That far is clear. यहाँ तक बड़ी अच्छी उनकी fit है, उनकी alignment बड़ी ठीक है. So what are the group's performance norms? उनके norms क्या हैं? This is interesting. ये उनके behavior से पता चलता है. It is okay to come late to meetings. It is okay to interrupt meetings. It is okay to hold meetings longer than 2 hours. It is okay not to follow through previous agreements. ये मीटिंग के नॉर्म्स हैं. मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं, डिसीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बिहेवियरल नॉर्म्स हैं. इस पे गौर कीजिएगा. So what is the nature of the team functioning in the group? अब यहां से हम फंक्शनिंग की तरफ आते हैं. नॉर्म्स हमने देख लिए, स्ट्रक्चर हमने देख लिए, हमने ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट देख ली. The case strongly suggests that interpersonal relations are not healthy on the management team. यानी कि इनके आपस में interpersonal relations, and perhaps because सिर्फ 6 महीने हुए इनको आए, हालांकि a very talented group. Members do not seem to confront differences openly. Members feel dissatisfied with the meetings, but they spend little time talking about these feelings. Relationships are strained, but members fail to examine the underlying causes. अब आपको कितना क्लियर हो गया कि इस ग्रुप फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स क्या है? So, there does not appear to be significant incongruity between the larger organization design and what the team is trying to do. टीम जो करने की कोशिश कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में कंफ्लिक्ट कोई नहीं है, इनकी अलाइनमेंट बड़ी सही है. But team problem solving may contribute to the ineffective, and the team might revert to more autocratic approach to decision making. अगर इनके टीम परफॉर्मिंग नॉर्म्स बेहतर ना हुए तो पार्टिसिपेटिव की जगह ऑटोक्रेटिव ये हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्लांट मैनेजर कहे जी अब मैं डिसीजन लेना शुरू कर दूंगा. In such a case, a serious mismatch between the plant management team and the larger company would exist,
and conflict between the two would result. तो डर ये है कि अगर इन्होंने अपने नॉर्म्स ठीक ना किए तो कल्चर बदल जाएगा. So there appears, however, to be a conflict in the priority between the problems to be solved by the team and the problems solved by the individual. So the conflict कहां आ रहा है कि जो टीम का स्ट्रक्चर है वो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल का और टीम के उसमें conflict आ रहा है. So the key difficulty seems to be a mismatch between the team's performance norms and interpersonal relation and the demands of the problem solving task. अब आपको यहां से पता चला कि स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, खराबी है प्रोफेशनल नॉर्म्स के अंदर. So members need to address explicitly how they are using their knowledge and skills and how they are weighing and combining members' individual contributions. So इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी जो एग्जाम्पल मैंने दी है, the team's performance norms fail to support complex problems. Members' interpersonal relationships reinforce adherence to the ineffective norms. वो ineffective norms पे ज्यादा फंसे हुए हैं. Members fail to examine the very norms contributing to their problems. वो मीटिंग के अंदर अपने ये जो परफॉर्मेंस नॉर्म्स हैं ना इनके, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे. Diagnosis suggests the need for group interventions aimed at improving performance norms and developing healthy interpersonal relationships. So must be a very good example for you. जो थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपके सामने एक छोटा सा ग्रुप 6 बंदों का, top people who have the power, people who have the desire, people who have the experience, but they found themselves in a new situation, जहां के they come together to resolve the differences and realizing the interdependence. और मैंने कहा था ये ग्लास फैक्ट्री है जिसके ऊपर continuity, interdependence, फर्नेस कभी बंद नहीं होती. फर्नेस से चीजें निकलती हैं और वो बनती जाती हैं. लिहाजा टास्क स्ट्रक्चर, ग्रुप का टास्क स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो. अगर मार्केटिंग वाला अच्छा काम नहीं कर रहा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सही काम नहीं कर रहा, पीपल वर्किंग ऑन द असेंबली लाइन वुड बी डिसहार्टन. टास्क स्ट्रक्चर बेशक कितना अच्छा क्यों ना हो, पीपल विल गेट बोर्ड. वहां ज्यादा लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे and at times people will not be functioning the way they are expected to. So here was a very good example of what I explained to you today. कि ग्रुप की बिहेवियर में, ग्रुप की स्ट्रक्चरिंग में, ग्रुप की कंपोजिशन में, ग्रुप की परफॉर्मेंस में, there are so many factors which need to be attended to. इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने खास चीज, एंड यू इफ यू जस्ट लुक अराउंड यू विल फाइंड इन वेरी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज प्रेवलेंट. दिस इज प्रेवलेंट इन आवर ओन सेल्व्स. हम अक्सर कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं मीटिंग होती है तो वी डोंट स्विच ऑफ आवर मोबाइल फोन्स, और इवन इफ वी कीप इट ऑन साइलेंट मोड, वी गो आउट ऑफ द मीटिंग. देयर मे बी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गोइंग ऑन. And if you are representing people, if you are there to discuss the problems of your group, but when such a norm, such a behavior is shown, is reflected onto the other members, it reflects कि आप कितने serious हैं. तो लिहाजा यहां से एक चीज इस एक्सरसाइज से, इस एग्जाम्पल से, ये है कि हम जब भी ग्रुप्स को इकट्ठा करें, हम उनके टास्क को डिफाइन करें और उन टास्क को अलाइन करें विद द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाटएवर द कल्चर प्रमोट्स, व्हाटएवर द कल्चर एनकरेजेस, जैसे इसके अंदर पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहिए एट दैट लेवल, बिकॉज दे एनकरेज्ड पीपल पार्टिसिपेशन, बट समहाउ the senior people, they were not behaving, they were not in fact working the way the overall organization model was
showing them to do. So therefore, ऐसे सिस्टम में जहां के स्ट्रक्चर भी ठीक है, जहां इनपुट भी परमिट करती है, and if the groups do not function, it trickles down to the lower level और इंडिविजुअल्स की भी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी. और अगर ग्रुप्स वो कल्चर, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स नहीं नीचे ट्रिकल डाउन करेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी सफर करेगी. आई होप आज इस एग्जाम्पल से यू मस्ट हैव गॉट अ क्लियर विजन ऑफ what exactly is desired when you diagnose at this level. मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर डायग्नोसिस के बारे में बात की. आज ग्रुप लेवल के ऊपर आपको बताया कौन से एलिमेंट्स जरूरी हैं जिसके ऊपर एक ओडी प्रैक्टिशनर नजर रखता है. और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए भी इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में I'll be coming down at a step down at a lower level to talk about कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसका जॉब स्ट्रक्चर को कैसे फिट इन करेंगे with what these people in the groups were talking about. I hope today's lecture was quite informative. Inshallah, we will conclude this part of the ROD program in the next lecture. Come prepared. See you. Take care of yourself.